everyone. A very good afternoon to one and all present here. I hope majorly बच्चे मेरे को जानते हो. I am Ayushi, an undergrad student at Shri Venkateshwara College, University of Delhi. And standing here feels like a full circle moment for me. This very podcast was like used to happen right in front. It was started right in front of my eyes. मैं भी आपकी तरह क्यूरियस और कंफ्यूज्ड फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हुआ करती थी, बट नाउ टुडे लाइफ हैज गिवन मी दिस ऑनर टू कम हियर एज अ गेस्ट, एज योर सीनियर और एज समवन हु हैव वॉक्ड द पाथ दैट यू आर अबाउट टू वॉक. And I feel genuinely grateful to this institution, whatever it has given to me. मैं proudly कह सकती हूँ जो भी मैंने आज अचीव किया है, जो भी मैं आज हूँ, it is only and only because of Junos Academy. So let's start आज का session. It is all about CUET examination, what opportunities it provides, and how to be in one of the best universities in India. So I hope ये session आपके लिए helpful रहे, and I would be so happy to see you all in Delhi University. Okay, before setting, I want to ask कि किस को थोड़ा सा भी idea है what is all about CUET? Anyone have any idea? किसी ने पहले कभी सुना है CUET क्या होता है? सुना है क्या होता है? हाँ जी, बताओ किसने? हाँ, तो it is a common university entrance test. A national level entrance examination for undergraduation and post graduation admissions. तो इससे आप जो इंडिया की जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जो भी एफिलिएटेड है एनटीए के थ्रू, आप उसमें एडमिशन अपना एनरोल कर सकते हैं. वो सब अभी हम पढ़ेंगे. सो So Delhi University of Delhi or DU, whatever you want to say, is one of the most prestigious universities in India. So Delhi University is one of India's top central universities. उसके अंदर 90+ कॉलेजेस आते हैं. तो बच्चों का मेजर कंफ्यूजन रहता है, उनको लगता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो ही कॉलेज है और वहीं सारे बच्चे जाते हैं, बट उसके अंदर 90+ कॉलेजेस है. वो 90+ कॉलेजेस 3 कैंपस में डिवाइड हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस. तो नॉर्थ कैंपस, इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है. बच्चों को लगता है कि जो नॉर्थ कैंपस है उसमें सारे जो कॉलेज है वो एकदम टॉप लेवल के, देन साउथ कैंपस, देन ऑफ कैंपस. ऐसा नहीं होता है. नॉर्थ कैंपस के जो मेजर कॉलेज है वो वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के. देन इट हैज आल्सो सम एवरेज कॉलेज एंड सम लो कॉलेज. सेम एज साउथ कैंपस में भी कुछ टॉप कॉलेज है, कुछ एवरेज, कुछ लो, सेम एज ऑफ कैंपस. ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कौन से टॉप कॉलेज है, कौन से एवरेज कॉलेज, क्या चीजें हैं. देन देयर इज 16 फैकल्टीज. फैकल्टीज मतलब कोई प्रोफेसर या टीचर्स नहीं है. फैकल्टीज हियर मींस अ डिपार्टमेंट. देयर इज फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, बहुत अलग-अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं. And there are 7 lakh+ students who study there. So you could be one of them. Okay? Now admissions here are only through CUET. पहले क्या होता था कि बोर्ड्स के रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशंस मिलते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में. तो people believe कि CBSE में लीनियर मार्किंग होती है कंपैरिजन टू स्टेट बोर्ड. तो NDA has given now everyone are equal chance and equal platform. तो आपके पास भी सेम चांस है जो बच्चा बैठा है दिल्ली में
पढ़ रहा है, तो सबके पास सेम चांसेस, सो यू मेक मोस्ट ऑफ इट. नाउ Delhi University is known for its academics, placement, vibrant atmosphere, everything. We'll discuss this later. Now, next. Okay, so this is a very, I can say, should be a respectful plus honest discussion. तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज कोई भी ऑफेंड मत होना इस चीज से. Okay, so now let's compare Delhi University with Uttarakhand's universities. ठीक है? So as I earlier mentioned, it is a central university and Uttarakhand's university are mostly state universities or private universities. Then the repo DU holds is of national and international level. However, Uttarakhand's universities have mainly primarily regional or local reputation. Now, exposure of Delhi University is of another level. Like there are so many types of societies. You just name the skill, and DU has its own society. Be it fashion, designing, photography, MUN, fine arts, कुछ भी, मतलब सारी societies हैं. You have all your interest. जहाँ आपका इंटरेस्ट है, आप वो सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो. Then there are annual fest. बड़े बड़े बिग आर्टिस्ट आते हैं, तो आपको अभी दीदी यहाँ भी फेस्ट होते हैं. बट यहाँ ऐसा प्रिविलेज है आपको कि अगर आप कॉलेज हिंदू कॉलेज में हो तो आप कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी फेस्ट में जा सकते हो. कोई भी वैंकी, मिरांडा, कोई भी फेस्ट में जा सकते हो. तो आप सारे फेस्ट को एंजॉय कर सकते हो. देन दिल्ली कल्चर. दिल्ली इटसेल्फ इज अ बिग हब ऑफ अपॉर्चुनिटी. बी इट एम्प्लॉयमेंट, बी इट बेटर नेटवर्किंग, be it jobs, internship, education, coaching center, सब कुछ है. ठीक है? Then Delhi University has very competitive atmosphere. मतलब आपको peer group बहुत ज़्यादा diverse background का मिलेगा. While आपको उत्तराखंड की यूनिवर्सिटीज में might there are chances कि आपको आपके friend circle में ही कोई मिल जाए आपके कॉलेज में. But if I talk about my class, मेरी क्लास में स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से भी है, कभी तेलंगाना से भी है, then they are from नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, MP, मतलब हर डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे मिलते हैं. then they are different mindset, उनका different experience, तो आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है as comparison to local level. ठीक है? then placement. Every college in DU has its own placement cell. मतलब बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, Deloitte, Accenture, Infosys, ये सारी आती हैं, एक फेयर लगाती हैं, आपका इंटरव्यू लेती है, आपको जॉब्स प्रोवाइड करती है, आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती है. So it is very accessible for employment or for like hire जो भी आप आगे करना चाहते हैं. Then fees. Fees is very affordable. It is highly recommended factor of choosing Delhi University. Is fees is very affordable. बहुत सारे पेरेंट्स नहीं मानते हैं कि हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करा देंगे. स्पेशली गर्ल्स में कहना चाहूँगी कि you should take stand of yourself, क्योंकि ये अभी की बात नहीं, ये आपकी पूरी लाइफ की बात है. It would transform your entire life अगर आपने अभी अपना स्टैंड ले लिया. तो क्योंकि जो लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं वो मोस्टली नहीं मानते, क्योंकि मैंने एक केस देखा था जिसमें बहुत मतलब बच्ची ने बहुत अच्छा कैंपस निकाल लिया था, फिर भी उसको जाने नहीं दिया. तो दिस इज योर टाइम टू टेक स्टैंड ऑफ योरसेल्फ. यू आर सो इनफ मैच्योर कि आपको आपके लाइफ के डिसीजंस आप खुद लेने पड़ेंगे, आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है. ठीक है? Now coming to the main part, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिस्कशन बाद में करेंगे. Now let's talk about what whole is CUET. As you have said, it stands for Common University in Entrance Test. It is a national level entrance examination. यहाँ पे सिर्फ UG लिखा है, PG के भी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए. Then it is conducted by NTA, National Testing Agency. And it is accepted by 250+ universities. मतलब CUET के थ्रू सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है,
उससे आपका 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो जाओगे, अपने आप को रजिस्टर कर लोगे इफ यू गिव दिस एग्जाम। नाउ इट इज इंटायरली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। हमारे टाइम पे हाइब्रिड फॉर्म में होता था, सिंस लास्ट ईयर एनडीए ने उसको पूरा ऑनलाइन मोड में कर लिया है, तो इट इज वेरी now very easy for you to have a good time management as well as a good accuracy during exam. Now other central universities then देखो वैसे तो 250 plus universities है, but these are well known universities. First is Aligarh Muslim University, then there is Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University situated in Lucknow. Then we have Banaras Hindu University, आप लोगों ने नाम सुना होगा, it is highly recommended university. Then there is Jamia Millia Islamia in Delhi itself. Then there is Jawaharlal Nehru University. तो आप इन सब में भी एडमिशन ले सकते हैं except Delhi University. Now let's understand what the exam pattern is. कैसा एग्जाम होता है? तो मेजरली 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज लैंग्वेज टेस्ट, देन देयर इज डोमेन टेस्ट, देन देयर इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बेसिकली हर एग्जाम में 50 क्वेश्चन होते हैं एंड यू हैव टू अटेंड ऑल द 50 क्वेश्चंस एंड इट इज फॉर 60 मिनट्स, 1 घंटे का टाइम होता है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। For every correct answer you will get 5 marks and for every wrong answer they will cut your 1 mark. ठीक है? तो with good time management you should have good accuracy. Now let's discuss this in detail. तो language टेस्ट उन्होंने पूरे 30 plus languages आपको दिए हैं, तो उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मोस्टली इंग्लिश चूज करते हैं क्योंकि ज्यादातर जो कॉलेज है वो इंग्लिश की ही डिमांड करते हैं। आप पूरा जो पेपर होता है सीयूईटी का वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, मतलब वहाँ पे आपको कोई आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑल यू हैव टू टिक योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? देन डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डोमेन सब्जेक्ट जो अभी आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, अगर साइंस बैकग्राउंड है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अगर कॉमर्स है तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। ठीक है? तो ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे। एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो जनरल टेस्ट होता है, करंट अफेयर्स पूछते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। नाउ लैंग्वेज टेस्ट ऑनलाइन मोड होता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। देन की सेक्शंस जो कि वो आपको चेक करते हैं, वो होता है वोकैब चेक करते हैं, आपकी ग्रामर चेक करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, और जो टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर स्पॉटिंग, फॉरेन वर्ड्स, मतलब जो भी आपने बचपन से पढ़ा है वो एक बेसिक लेवल का पढ़ा है, बट वो आपसे एक स्टैंडर्ड लेवल का पूछते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जैसे जो भी डोमेन आपका होता है वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होता है, बट इंग्लिश का हम कहाँ से पढ़ें, क्योंकि वो लोग कोई प्रिस्क्राइब्ड सोर्स नहीं देते हैं। तो देयर इज सम यूट्यूब चैनल्स, CUET अड्डा 24/7, देयर इज शिप्रा मिश्रा, वो एक टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, यू कैन चेक हर। एंड CUET वाला, पाई फिजिक्स वाला, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो जस्ट सर्च थ्रू द इंटरनेट, आपको कौन सी टीचर आपको समझ में आ रहा है, जो थोड़ा ऑथेंटिकेट सोर्स आपको दे रहे हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। देन डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है, बस कुछ अनसीन पैसेज में आप थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बाकी इजी पेपर होता है। नाउ डोमेन, वही आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको क्या होता है कि here NCERT is your entire Bible, आपको NCERT पूरा थॉरोली पढ़नी होती है, जो भी छोटे छोटे बॉक्सेस हम लोग मिस कर लेते हैं वो पूरा अच्छे से डीप रीडिंग करनी होती है, सब कुछ पूरा पेपर NCERT से आता है। तो इट इज सो इजी, आप लोग क्लास 12 में हो, अभी जो क्लास 11 होंगे या फिर जो क्लास 12 में हो वो अभी बोर्ड्स देंगे, तो इतना कुछ है नहीं कि हमें कोई दूसरा अलग ही चीज पढ़नी है, आपको अपना सिलेबस ही पढ़ना है,
बस थॉरोली पढ़ना है एंड इट वुड इम्पैक्ट इन योर बोर्ड रिजल्ट ओनली। ऑनेस्टली मैंने भी सीयूईटी में ज़्यादा फोकस किया था, बट इट हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट, वो मेरे रिजल्ट में ही आउटशाइन हुआ। तो आपको अपना सिलेबस ही थॉरोली अच्छे से पढ़ना है, डीप रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की। Then the most important part here is subject selection. Subject selection बहुत ज़्यादा important होता है। तो जैसे हम मतलब वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अभी थोड़ी देर मतलब थोड़े टाइम बाद एक ब्रोशर पूरा फुल डॉक्यूमेंट रिलीज करेगा जिसमें वो पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज ऑफर कर रहे हैं और वो उनका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब आपके कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए उस कोर्स को पढ़ने के लिए। तो वो भी इम्पोर्टेंट है उसको गो थ्रू करना कि वो क्या बोल रहा है, कौन से हमें सब्जेक्ट लेने हैं कौन सा कोर्स करने के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट आप प्लीज अच्छे से पढ़ना जब डीयू रिलीज कर देगा उसको। नाउ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली ये ऑप्शनल होता है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको पढ़ लो, मतलब दे दो, क्योंकि कुछ कोर्सेज के लिए मैंडेटरी होता है जैसे बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो भी हम ये कोर्सेज करने वाले हैं जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं 4 ईयर 5 इयर्स के, तो उसके लिए ये एग्जाम मैंडेटरी होता है। और कुछ कॉलेज इसको मैंडेटरी करते हैं कि ये अगर आप दोगे तभी आपका एडमिशन उस स्पेसिफिक कॉलेज में हो सकता है, और ये सब इंफॉर्मेशन भी आपको उस डॉक्यूमेंट में ही मिलेगी, ठीक है। तो ये जो मेजर कॉम्बिनेशन होता है, मोस्ट लाइकली कॉम्बिनेशन होते हैं एक लैंग्वेज का, 3 डोमेन एंड 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यू कैन चूज मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, 5 से ज़्यादा आप लोग चूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ 5 सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हो। और उसमें आपको अपना कॉम्बिनेशन करना है कि या तो आप 2 लैंग्वेज भी ले सकते हो या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो, इट इज़ ऑल अप टू यू। और क्या आपका कोर्स मतलब उसकी क्या डिमांड है। नाउ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरली सीयूईटी 40 से 50% तक क्लास 12 का मार्क्स मांगता है, बट कुछ कोर्सेज 60% मैक्सिमम भी मांगते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन योर क्लास 12 ऑल्सो, क्योंकि क्लास 12 के मार्क्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं ये किसी को पता नहीं होता है। लेट्स सपोज मेरा और इसका सेम कॉलेज में एडमिशन हो गया, उस कॉलेज में जो हम लोग कोर्स एस्पायर कर रहे हैं, लेट्स से बीकॉम ऑनर्स हम लोग को करना है, और उस कॉलेज के लिए 20 सीट्स है। अब 19 सीट्स फिल हो चुकी हैं और 1 सीट बची है। हम दोनों के सेम मार्क्स आए हैं, सेम कोर्स सेम कॉलेज के लिए। अब कैसे क्रैक होगा? तो अब क्लास 12 के मार्क्स लगते हैं, तो जिसका क्लास 12 का मार्क्स ज़्यादा होगा उसको वो सीट मिल जाएगी। तो क्लास 12 भी आपको नेगलेक्ट नहीं करनी है, वो मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सी इट्स योर लास्ट बोर्ड्स, तो आप उसमें जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी कर लो, क्योंकि एट द एंड सिलेबस सेम ही है, ठीक है। तो अगर आप क्लास 12 में अच्छा मार्क्स दोगे तो वो आपका आगे सीयूईटी में भी काम आएगा। तो ऐसे ये बहुत रेयर केस होता है, बट हाँ प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है। नाउ एप्लीकेशन टाइमलाइन, सी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपके फॉर्म होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, वो मिड फरवरी टू लास्ट मार्च तक खुले रहते हैं। डेट एक्सटेंड होती है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उस टाइम पीरियड में उसको फॉर्म को फिल करके अपलोड कर दो, क्योंकि मतलब बाद में ग्लिचेस भी होते हैं। और देखो सबसे पहले आपको सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आप 250 प्लस जो यूनिवर्सिटीज बताई थी उन सब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। देन अलग अलग कॉलेज के अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, जैसे डीयू का पोर्टल होता है सीसेस, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तो ये पोर्टल खुलेगा तो आपको अपना डीयू के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करना है। डीयू के बाद बीएचयू का खुलेगा, जेएनयू का खुलेगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का खुलेगा। तो अगर आपने सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका डीयू में भी फॉर्म आपका फिल हो चुका है। डीयू के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो एक बार इस टाइम पे
आप रेगुलरली एक बार एनटीए डीयू इन सबके पोर्टल्स चेक करते रहना, उनके सारे नोटिस ट्रैक करते रहना। देन फॉर्म आपने फिल कर लिया, इट इज एग्जाम मिड मई टू मिड जून तक आपके एग्जाम्स चलते हैं, 3-4 दिन में खत्म हो जाते हैं क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड है। देन रिजल्ट आता है आपका जुलाई में तो जुलाई में रिजल्ट आएगा, तो ये अलग अलग फेजेस में आता है। मतलब सबसे पहले आपकी आंसर की आएगी, ठीक है, तो फर्स्ट आंसर की आती है, तो देयर आर चांसेस कि उसमें कुछ मिस्टेक्स हो, तो वो मिस्टेक्स फिर प्रोविजनल आंसर की आती है उस मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए। फिर उसमें भी अगर कोई मिस्टेक हो तो एक क्लास में फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद कोई आंसर की नहीं आएगी अगर फाइनल आंसर की आ गई। फाइनल आंसर और इतनी जो आंसर कीज आएंगी, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपके मार्क्स सेम रहेंगे, आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट खुद करने पड़ेंगे। तो जो फाइनल आंसर की का आपका स्कोर होगा वो भी जरूरी नहीं है कि आपका जो रिजल्ट में लास्ट में स्कोर आएगा वो सेम रहे, क्योंकि एक चीज होती है वो मैं अभी आगे बताऊंगी, बता दें। तो ऐसा होता है कि जो मेरा स्कोर था फाइनल आंसर की में, मेरा स्कोर था 686 और मेरा रिजल्ट में स्कोर आया अराउंड 725, तो ये इतना गैप आ सकता है। अभी क्यों आता है, क्योंकि एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो अब जो पेपर है वो उसके अलग अलग सेट्स होते हैं, ठीक है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, हर एग्जाम में सेट होते हैं। तो लेट्स सपोज मेरा जो सेट था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था एज कंपैरिजन टू बी जिसका सेट बहुत इजी था। अब मेरे को और इसको सेम प्लेटफॉर्म में लाने के लिए वो लोग मेरे मार्क्स इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। मेरा एक ब्रदर था, उसका मतलब एक आयुष नहीं, दूसरा एक भाई था लास्ट ईयर, उसके भी मार्क्स इंक्रीज हुए, बट जरूरी नहीं कि मार्क्स इंक्रीज ही होंगे, मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हो कि आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो, तो इसलिए ऐसा आप अगर रिजल्ट आ जाए तो आपको डरना मत, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता, जो परसेंटाइल बनती है वो नहीं आती, तब तक आप किसी भी चीज में ऐसे मतलब एकदम अड़ मत जाना कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ गए, नहीं। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक आप अपने मार्क्स को कंफर्म मत करना। तो 725 अप्रॉक्स मेरे मार्क्स बने थे, तो इसलिए एक नॉर्मलाइजेशन होता है जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। Now some important points to be noted. Practice as much as mock test and PYQs. जितना मॉक टेस्ट कर सकते हो उतना करना, इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपकी एक्यूरेसी आपको पता चलेगी, और उससे ज़्यादा आप अपने मार्क्स को एनालाइज कर सकते हो कि हाँ मेरे वीक एरियाज कहाँ हैं और मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। देन आप PYQs भी देखना, इंटरनेट में सारी सोर्सेज प्रोवाइडेड है, तो आप उनको एक बार देखना कि हाँ पैटर्न क्या आता है, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं, कहाँ से हम लोग बोर्ड्स में भी PYQs देखते हैं कि हाँ पैटर्न कैसा है बेसिकली एग्जाम का। देन चूज सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन कोर्स रिक्वायरमेंट, मतलब जो आपका दिल कहता है आप वो ही कोर्स करना, ये नहीं कि दोस्त बीटेक कर रहे हैं तो मैं बीएससी छोड़ के बीटेक कर लूँगा, नहीं। मतलब दिस इज योर लाइफ, एट द एंड आपको आपका जहाँ पैशन है, आपका जहाँ इंटरेस्ट है, आप वही कोर्स करना, ठीक है। देन फिल द सीयूईटी फॉर्म केयरफुली। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट या फिर अपना कोई भी इंफॉर्मेशन गलत अपलोड कर दी, इट वुड लीड टू डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, आपको एग्जाम में बैक भी नहीं देंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू उसको ट्वाइस थ्राइस एक बार बहुत बार चेक कर लेना, एक बार एक विंडो फिर से ओपन होगी कि अगर कोई मिस्टेक्स है तो उसको चेक कर लो, तो जितना हो सके उतना करेक्ट इंफॉर्मेशन अपलोड करना, तो लास्ट में मतलब सब कुछ करके भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। देन एज आई सेड चेक ऑफिशियल एनटीए एंड डीयू नोटिसेस, डीयू के नोटिस आते रहते हैं, उनको ट्रैक करना, और हो सके तो कहीं अगर आप सोशल मीडिया में हो तो ये पेजेस को फॉलो कर लेना, तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। देन कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर सीसीएस काउंसलिंग, एक बार डीयू का पोर्टल ओपन हो जाए तो वो लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वैलिड एड्रेस प्रूफ, वैलिड आईडी, और आपकी जो भी कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट्स है या फिर आपको कोई भी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, तो वो भी एक टाइम होता है कि हाँ इतने से इतने के बीच में ही ये जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, तो वो सब कुछ अपना
रेडी कर लेना, आपको बहुत टाइम मिलेगा एक बार आपका बोर्ड्स खत्म हो जाए, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी करना। देन प्रिफर अ बैलेंस लिस्ट ऑफ कॉलेज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेम चेंजर पॉइंट है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देन मैनेज टाइम एंड एक्यूरेसी ड्यूरिंग एग्जाम, जैसे मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है। नाउ द मेन गेम इज प्रेफरेंस लिस्ट, मतलब किसी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है और उसने प्रेफरेंस शीट गलत बना दी, तो उसको भी बहुत इसको गंदा सा कॉलेज मिल जाएगा, और जिसका एवरेज मार्क्स आया है उसने प्रेफरेंस शीट अच्छी बना दी तो उसको टॉप का कॉलेज मिल सकता है। मतलब आपके मार्क्स कैसे भी आए, ये आपका पूरा गेम चेंज कर सकता है, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल नो योरसेल्फ, कि आप चाहते क्या हो, आपको कौन सा कोर्स करना है। देखो ये बनाने के लिए 3 वेज होते हैं, ठीक है, 3 टाइप की प्रेफरेंस शीट बनती है। इंटरनेट में बहुत अलग अलग टाइप की बताते हैं, मैं सिंपल बताती हूँ। फर्स्ट ऐसी होती है कि आपको एक कोर्स है, मान लो किसी को करना है बीकॉम ऑनर्स, तो उसको बीकॉम ऑनर्स ही करना है, चाहे उसको कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो वो अपने इस कोर्स के लिए अपना कॉलेज सैक्रिफाइस कर सकते हैं। लेट्स से बीकॉम ऑनर्स है तो वो बीकॉम ऑनर्स की सारी कॉलेज की लिस्ट डाल देगा, मतलब जो सारे बीयू के कॉलेज है वो सारे जो बीकॉम ऑनर्स कराते हैं तो वो सारी लिस्ट डाल देगा। एक तो ये होता है कि आप अपना कॉलेज सैक्रिफाइस कर सकते हो लेकिन आपको कोर्स वही चाहिए। फिर दूसरी लिस्ट बनती है कि आपको एक कॉलेज है, आपका ड्रीम कॉलेज, जैसे लड़कियों का मिरांडा हाउस होता है या फिर एलएसआर, तो आपको उसी कॉलेज से कोई भी कोर्स मिल जाए लेकिन मुझे जाना इसी कॉलेज में है, ऐसा भी होता है। तो आप उस कॉलेज की सारी कोर्स की लिस्ट डाल दोगे कि हाँ मेरे को बस कोई भी कोर्स मिल जाए लेकिन मैं जाऊंगा इसी कॉलेज में, तो ऐसा भी होता है। तीसरा विच आई हैव फॉलोड इज बैलेंस लिस्ट, कि आपको कॉलेज भी डिसेंट मिल जाए और कोर्स भी डिसेंट मिल जाए। देखो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिले। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी हिंदू कॉलेज से पॉल साइंस ऑनर्स, लेकिन मेरे को मिला मेरी 19th प्रेफरेंस श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से बीए प्रोग्राम। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड कोई भी प्रेफरेंस मिले, वो एनटीए डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है। तो इसलिए इट इज वेरी इसेंशियल कि आप अपनी प्रेफरेंस शीट अपने अकॉर्डिंग बनाओ, किसी की कॉपी मत करना जो आपका दिल कहता है, और इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगता है, मतलब आपके पास बहुत टाइम होता है। मैंने तो अपना जितना दिमाग था सारा इन्वेस्ट कर दिया कि मैं कैसे बनाऊं, ठीक है। तो देन डू सम रिसर्च ऑफ कॉलेज, तो आपको अगर मैं आपको थर्ड वे बताऊं जो मैंने फॉलो किया था, तो सबसे पहले मैंने किया कोर्स को अपने प्रेफरेंस दे दी कि हाँ मेरे को पॉल साइंस ऑनर्स करना है, फिर मेरा कोर्स का प्रेफरेंस है हिस्ट्री ऑनर्स, फिर बीए प्रोग्राम, ऐसे नीचे बीए प्रोग्राम के अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मैंने कोर्स का प्रेफरेंस बना दिया कि हाँ ये मेरा कोर्स का प्रेफरेंस रहेगा। फिर मैंने कॉलेज का प्रेफरेंस बना दिया कि हाँ नॉर्थ कैंपस की ये टॉप कॉलेज, साउथ कैंपस की ये टॉप कॉलेज और ऑफ कैंपस की ये टॉप कॉलेज। तो मेरे पास एक कोर्स की प्रेफरेंस आ गई, एक कॉलेज की प्रेफरेंस आ गई, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसी कॉम्बिनेशन लगा ली। तो फर्स्ट मेरा कॉम्बिनेशन गया हिंदू का पॉल साइंस, दूसरा गया हंसराज का पॉल साइंस, ऐसे ही पहले पॉल साइंस की टॉप कॉलेज का लगा लिया, फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑनर्स की टॉप कॉलेज का लगा लिया, फिर हमने ऑफ कैंपस की टॉप कॉलेज का लगा लिया पॉल साइंस ऑनर्स में। फिर वैसे हिस्ट्री ऑनर्स का लगाया हमने कि हिस्ट्री के हिंदू से, फिर ऐसे मतलब हिस्ट्री का हिंदू, फिर हंसराज का, ऐसे मतलब कॉलेज के साथ कोर्स का लगा दिया। देन ये था अब शुरुआत में आपको हाई टू लो चलना है। फिर एक बार आपका रिजल्ट आ जाए, आपको सीट एलोकेट हो जाए, फिर से आपकी प्रेफरेंस विंडो खुलती है कि हाँ अगर अब आपको शफल करना है, अब आपको अपना एक्शन दिमाग लगाना है, आपको कोई डेल्यूजनल में कुछ नहीं करना है कि हाँ ये मेरे को मिल जाएगा। अब आपको रियलिटी को फॉलो करके कि इस कॉलेज में कितनी सीट बची है और कितना चांस है मेरा इस कॉलेज में एडमिशन लेने का। लेट्स से आप इसमें आपको ये नहीं कि अगर हिंदू कॉलेज में 20 सीट मिली लेकिन आपके मार्क्स एवरेज आ रहे हैं तो आप हिंदू को सबसे ऊपर रखोगे। इसमें जहां आपका मैक्सिमम चांस है, अगर मैं बताऊं, चलो मैंने तो अपना नहीं किया था, लेकिन अगर मैं आयुष का केस लूं तो उसमें इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ था क्योंकि हम लोगों ने
लास्ट में ऐसे बहुत सारे कॉलेज थे, तो हम लोग ने बिल्कुल दिमाग लगाया था कि हाँ इस कॉलेज में आयुष का एडमिशन हो सकता है, तो हमने इसको सबसे ऊपर रख दिया क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीट्स बची थी और उसमें मैक्सिमम चांस था, और आयुष का जो स्कोर था वो कट ऑफ से बहुत सिमिलर था। तो ऐसे हम लोग को फर्स्ट में तो हम लोग को हाई टू लो रखना है। सेकंड वाला जो प्रेफरेंस विंडो आपका खुलता है उसको आपको रियलिटी के साथ चल के कि कितना सीट बचा है, कितना कट ऑफ से सबसे ज्यादा आपकी सिमिलर सबसे ज्यादा क्लोज है, तो उसको ऐसे लगाना है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शीट का बहुत मेजर रोल होता है डीयू में आने का। और आई से कि आप अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए तो आप लास्ट तक रहना। राउंड 1 होता है, फिर राउंड 2, फिर राउंड 3, फिर स्पॉट राउंड आते हैं, स्पेशल राउंड्स आते हैं, तो जो लास्ट तक रहेगा उसका एडमिशन होगा ही होगा। बस आपको प्रेफरेंस शीट अपनी अच्छी बनानी है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड करने हैं, तो आपके मार्क्स कितने भी आए हो आपका एडमिशन हो जाएगा। देन ये प्रेफरेंस की बात थी। तो अब आपको सीट मिल गई, आपका राउंड 1 आ गया, ठीक है, तो आपको एक कॉलेज की एक सीट मिल जाएगी। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अपग्रेड का ऑप्शन होता है, एक फ्रीज का ऑप्शन होता है। तो आपके पास कुछ 2-3 दिन का टाइम होता है कि हाँ अगर आपको ये अपग्रेड करना है, मतलब मान लो आपको आपकी 15th प्रेफरेंस मिल गई, तो अब वो 15th प्रेफरेंस के नीचे के जो भी कॉलेज होंगे वो सारे कट हो जाएंगे, मतलब अब आपको उनके बारे में सोचना ही है, वो खत्म हो गए आपकी लिस्ट से। अब 15 के ऊपर जो 14 कॉलेज है आपको सिर्फ उस प्रेफरेंस को शफल करना पड़ेगा। तो अब अगर आपको फ्रीज करना है, मतलब आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल गया कि आप इसे चलो ठीक है मैं इसी कॉलेज में जा रहा हूँ, तो आप फ्रीज कर लेना। और फ्रीज सिर्फ तभी करना जब आपको लगे कि हाँ ये कॉलेज से मैं कर लूँगा, मेरे को मेरा एस्पायर्ड कॉलेज मिल गया और एस्पायर्ड कोर्स मिल गया। नहीं तो आप अपग्रेड कर लेना राउंड 2 के लिए। तो राउंड 2 में देखो क्या होता है कि कुछ बच्चों की ना एडमिशंस मेरिट के थ्रू कोई प्राइवेट कॉलेज में हो जाते हैं, या फिर इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो बच्चे अपना एडमिशन विड्रॉ करा लेते हैं, या किसी का डॉक्यूमेंट के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे वैसे ही आउट हो जाते हैं। तो लास्ट में सिर्फ कुछ बच्चे बचते हैं, तो इसलिए आपका जो चांस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एडमिशन पाने के लिए। ठीक है, तो प्रेफरेंस शीट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आप अपग्रेड कर लो तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि अपग्रेड हो, मतलब कोई दूसरा आपको ऊपर का कॉलेज मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कॉलेज कोई ना मिले और वही कॉलेज रहे, फिर आपको फ्रीज करना ही पड़ेगा, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। फिर ऐसे आपका अपग्रेड होगा, आप आगे कितना भी अपग्रेड कर सकते हो, मतलब आगे राउंड्स जाएंगे, स्पॉट राउंड। तो आपको अगर आपको अब ऑप्शन है कि अगर ये तो था कि अगर आपको कॉलेज मिल गया राउंड 1 में, नाउ लेट्स से द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपको कॉलेज ही नहीं मिला राउंड 1 में, तो आपको अपसेट नहीं होना है, आपको राउंड 2 के लिए वेट करना है। राउंड 2 में आपका हो सकता है क्योंकि बच्चे एडमिशन विड्रॉ भी करा लेते हैं, जैसे मैंने केसेस बताया, अलग अलग केसेस होते हैं, तो राउंड 2 के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे राउंड्स होते हैं और आप आगे कर सकते हो। तो जो बच्चा लास्ट तक रुके रहेगा उसका एडमिशन 99.9% हो जाएगा। कुछ एक 0.1% की हाँ अगर आपका स्कोर ही बहुत लो है तो फिर एक ये क्राइटेरिया होता है कि हाँ फिर तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपका स्कोर एवरेज है तो वो फर्स्ट गो में ही आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आपने अपनी प्रेफरेंस शीट अच्छी बनाई। देखो अगर आपको प्रेफरेंस शीट समझ में नहीं आएगी तो प्लीज कांटेक्ट मी। गलत प्रेफरेंस शीट मत बनाना, बहुत बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं फिर भी आपको कोई लो कॉलेज मिल जाएगा, तो प्रेफरेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूरा गेम चेंज कर सकती है। ठीक है, नाउ देयर आर सम टॉप कॉलेज, जैसे हिंदू कॉलेज है, मिरांडा कॉलेज है, NIRF 1, ये विमेन कॉलेज है। देखो लड़कों के लिए थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम होती है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली विमेन कॉलेज में है जहाँ लड़कों का एडमिशन नहीं होता, सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होता है, और ये बहुत सारे नंबर में है।
देन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC, हर कॉमर्स स्टूडेंट का ड्रीम कॉलेज होता है। देन देयर इज सेंट स्टीफेंस कॉलेज, देन देयर इज हंसराज कॉलेज, किरोड़ीवन कॉलेज, रामजस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज फॉर वुमेन, देन इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। अब देखो जो लास्ट के 2 कॉलेज हैं वो टॉप कॉलेज नहीं है, वो मीडियोकर कॉलेज है। तो इसलिए ये प्रूव करता है कि नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेज बेस्ट नहीं है, बट हाँ मेजरली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज है वो नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है। देन देयर इज साउथ कैंपस, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, LSR, बहुत सारी लड़कियां यहाँ जाने के लिए एस्पायर करती हैं। देन देयर इज गार्गी कॉलेज फॉर वुमेन, देन देयर इज आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, then there is Jesus and Mary College for women, then there is Maitri College for women, then Motilal Nehru College, रामलाल आनंद कॉलेज। अगर आपको याद हो तो मेरे बैच का जो प्रकाश सिजवाली है वो रामलाल आनंद कॉलेज में है। देन श्री औरोबिंदो कॉलेज। तो इसमें भी कुछ कॉलेज मीडियोकर हैं, कुछ कॉलेज टॉप कॉलेज हैं। तो आपको इंटरनेट में देखना है कि कौन सा, देखो इंटरनेट में क्या देखना, सबसे पहले इनके इंस्टा हैंडल्स चेक करना, कैसे इवेंट्स होते हैं, कैसे फेस्ट होते हैं। अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन है मतलब हाँ अच्छा कॉलेज है। देन इनके एलुमनाई चेक करना। अगर मैं अपने कॉलेज के एलुमनाई की बात बताऊं तो ऋषभ पंत हैज स्टडीड फ्रॉम माय कॉलेज, सोनम वांगचुक हैज स्टडीड फ्रॉम माय कॉलेज। तो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो इसलिए बहुत वर्थ इट होगा अगर आपने ये यूनिवर्सिटी क्रैक करने को। और देयर इज ऑफ कैंपस जैसे देशबंधु कॉलेज, ये इसमें जो मोस्टली कॉलेज मीडियोकर कॉलेज है क्योंकि इनका जो एनवायरनमेंट है मतलब ये थोड़े दिल्ली के ऑफ एरियाज में है एज कंपैरिजन टू नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। सिर्फ इसी वजह से इसको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी मिलती है, बट एट द एंड ये भी अच्छे कॉलेज है। अगर आपका इन कॉलेज में भी एडमिशन होता है, क्योंकि मेरे बैच में कुछ बच्चों को ऑफ कैंपस में एडमिशन हुआ, पर इसलिए उनको ऑफ कैंपस में एडमिशन हुआ तो उन्होंने अपना एडमिशन ही विड्रॉ करा दिया। पर आपको लास्ट में डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलती है, जो आपका एफिलिएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही माना जाएगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हाँ अगर ऑफ कैंपस में मिल गया तो जस्ट टेक द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप बहुत प्रिविलेज हो कि आप पूरी कंट्री के कुछ बच्चों में से वहां पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका इन कॉलेजेस में भी एडमिशन होता है तो जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। देन दिस इज आर्टिस्ट इन फेस्ट। ये सिर्फ कुछ मेरे को पिक्चर्स आस्था गिल आ रही है, सलीम मर्चेंट, मोहित चौहान, जावेद अली, सीधे मॉल। Like you have the opportunity to look front, like इतना पास से हम लोग उनको सुनते हैं जो हम लोगों ने बचपन से टीवी में देखे होते हैं। तो ये भी एक अटेंशन सीकर होता है कि हाँ हम लोग को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, बहुत अच्छा कल्चर होता है, ठीक है। तो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप मैंने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी हो। एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट्स? Ask questions to them if there is any doubt. Gita ma'am, there is no question. सो जो दीदी वो प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेजेस में जो राउंड्स होते हैं ना, तो वो उसमें सिलेक्शन कैसे होता है, उसमें क्या क्राइटेरिया होता है उसका? कोई क्राइटेरिया नहीं होता। जैसे मैंने बताया आपको 3 टाइप्स की होती है। अब जैसा आपका विश है आप वैसे बना सकते हो। अगर आप बैलेंस लेते हो तो पहले तो प्रेफरेंस शीट बन जाएगी, फिर उसके बाद सीट एलोकेशन स्टार्ट होगा। तो उसमें आपको राउंड 1 में 2 प्रोबेबिलिटी है, तो आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेट्स से आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, आपकी 15 एंड यस गाइस जितना हो सके लंबा प्रेफरेंस लिस्ट बनाना जिससे आपके चांसेस इंक्रीज हो जाए। अगर आपने
सिर्फ सोचा कि हाँ मैं सिर्फ टॉप कॉलेज डाल दिया, 20 कॉलेज डाल दिए तो उसमें से बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा। मैंने 80+ कॉम्बिनेशंस डाले थे। कॉम्बिनेशन मतलब हिंदू का पॉल साइंस ये 1 कॉम्बिनेशन, हिंदू का हिस्ट्री ऑनर्स ये 2nd कॉम्बिनेशन। तो ऐसे जितने कॉम्बिनेशंस हो सके उतने डाल देना, ठीक है। तो आपका लेट्स से 15 प्रेफरेंस आपको मिल गई, तो आप 15 प्रेफरेंस के जो भी नीचे कॉलेज होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो अगर आपका 15 प्रेफरेंस आपने सोचा कि हाँ ये अच्छा है, ये मैं कर सकती हूँ, या अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ इंक्रीज हो सकता है, मेरा अपग्रेड दूसरे कॉलेज में भी हो सकता है, तो ऐसे ही अपग्रेड कर लेना। फर्स्ट गो में फ्रीज मत करना क्योंकि बाद में ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो आपने राउंड 2 के लिए अब अप्लाई कर दिया तो चांसेस है कि हाँ आप फिर आपके लिए ना प्रेफरेंस विंडो खुलेगी, तो आप जितनी भी 14 कॉलेजेस या 15 कॉलेजेस आपके पास हैं तो आप उसको शफल कर सकते हो। तो लेट्स से आपका जो 15 प्रेफरेंस है तो आपने उसको ऊपर रख लिया कि हाँ चांसेस है कि इसमें मेरे को मिल जाए, तो आपने इसमें थोड़ा रियलिटी को देख करके रखना है क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितनी गई है हर कॉलेज की, हर कॉलेज में अब कितनी सीट बची है राउंड 1 के बाद। तो इसके बाद आप प्रेफरेंस शफल कर सकते हो। प्रेफरेंस शफल करने के बाद आपने डाल दिया तो मान लो अब आपका कोई ऊपर का कॉलेज आ गया तो ये आपने कहा कि हाँ ये अच्छा कॉलेज है, ठीक है, तो आपने ये फ्रीज कर लिया। अब अभी भी आपको अपना कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप फिर से अपग्रेड कर सकते हो अगर वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऐसे आप आगे ऑप्शन अपग्रेड कर करके फिर आपको एक लास्ट में कॉलेज मिल जाएगा जो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। समझ में आया? Thank you. For more detail, you can contact ma'am also. Okay. Anyone else? चलो कोई बात नहीं, अगर अभी किसी को शर्म आ रही है तो प्लीज मेरे को डीएम कर देना या मेरे को कैसे भी कांटेक्ट कर लेना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू गाइस, ठीक है। मैं चाहती हूँ, एकदम दिल से चाहती हूँ कि बच्चे मेरे को वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिले। अगर बाद में कॉलेज में भी कोई डाउट्स या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो तभी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और फॉर्म्स में एकदम नज़र रखना कि हाँ जैसे फॉर्म्स आएंगे तो फिल कर लेना, ठीक।